بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا کے ساتھ جڑے ہیں, اور ہر انسان کے اندر خطا کا عنصر پایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے. میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سارے لفظوں کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جاتے ہیں ود ایویڈنس میں دینے کے لیے تیار ہوں, جس میں 2 تو میرے پاس موجود ہے, جس وقت مرضی کوئی چاہے تو دیکھ. واٹس ایپ گروپ کی نیوزز کا حصہ نہیں ہے ہم لوگ. کسی واٹس ایپ میں بھیجے جانے والے میسج کے مطابق یا جو بھیجی جانے والی نیوز ہے یا جو کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے, جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ لوگوں کے میسیجز آئے کہ پچھلے 2-3 دن سے ہم لوگ کوئی ویڈیو بنا کر کیوں نہیں اپلوڈ کر سکے. تو اس کی ایک خاص وجہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سب کی محبتوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ کے میسیجز کا آنا کہ کیا بات ہے کہ 2-3 دن سے ہم لوگ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. لیکن جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہیں. ہم کہیں سے بھیجی جانے والی نیوزز کو اسی طرح ہو بہو پیش کر کے یا ان میں تھوڑا سا سپائسی مسالہ ڈال کر یا اس کو کسی خاص طبقے کے لیے کسی خاص پارٹی کی طرف سے کچھ وہی سنے جانے کی خواہش کا اظہار کرنا جو ان کو اچھا لگتا ہے, اور وہی سب کچھ کہنا جس کے لیے کسی کو ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو کا موقف واضح ہو جائے. ہم اس واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھیجی گئی نیوزز کے لیے ان لوگوں کو ہائر کیے جانے کا حصہ نہیں ہے جن کو چورن بیچتے ہوئے آج ان کو انالیسس, پولیٹیکل انالیسس کے لیے رکھ لیا گیا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, یہ ورڈ اس لیے یوز کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے عارضی فیمز دکھا کر لوگوں کی کہ یہ بندہ کل کو کچھ بھی نہیں تھا, بہت امیر ہو گیا, اور یہ اس لیے ہوا کہ اس نے ہمارے کورسز خریدے, ہم سے اس نے سیکھا کہ آن لائن کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایمیزون کرنا یا دوسری جتنی بھی جو بھی کام ہیں, جس طرح کے بھی کام ہیں. تو یہاں سے چلتے چلتے ان کو پھر پولیٹیکل انالیسس کی طرف لے کے جایا گیا. تو ان بیچاروں کو کیا پتا. دیکھیں, تنقید اور تعریف یہ ڈیفینیٹلی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہیں, اور ہر انسان کے اندر خطا کا عنصر پایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے. میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سارے لفظوں کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو اس طرح سے خوش نہ کر سکیں جس طرح کے الفاظ آپ سننا چاہتے ہیں, یا جس مخصوص پارٹی کے لیے آپ جو الفاظوں کی ادائیگی کا طریقہ کار آپ کے کانوں کو بھا چکا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے وہ بیان نہ کر سکوں. لیکن اس تنقید اور تعریف کی مد میں ہی کسی کو برا بھلا کہنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے, اور میں اس کے سخت خلاف ہوں. صحافی جو کہ ریل جرنلسٹ ہے اور جو جرنلزم کو جانتا ہے, اس کے بارے میں ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے جمیل فاروقی کو سپورٹ کیا, ہم نے ہر طرح سے اس کو کنڈیمڈ کیا, اس کے اوپر جو کوئی بھی ایکشن ہوا, اور اس طرح ہم لوگ عمران ریاض سے لاکھ اختلافات ہیں. بے شک وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان ہیں, وہ جو کچھ بھی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ہم ان کو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان میں جرنلسٹ کے ابھی بھی اثرات ہیں, ورنہ تو وہ بہت اچھے جرنلسٹ تھے. صرف اپنے آپ کو انہوں نے اسی وجہ سے ڈیگریڈ کر لیا کیونکہ اب ان کو سننے والا, دیکھنے والا طبقہ صرف وہی ہے جہاں تک ان کو محدود کر دیا گیا ہے, جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو فالو کرو اور ان کو دیکھو, بس وہی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی مخصوص قسم کی کوئی ان کے پاس ایسی خبر نہیں ہے ہوتی جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اتھینٹک ہے. آپ ان کو, میں ان سب کو کھلے عام سرے عام ان کو چیلنج کرتا ہوں اس بات کے لیے, یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, مناظرہ کر لیں, میں انہی کی ویڈیوز اٹھا کے میں انہی کے آگے رکھ دوں گا کہ بھائی اس کو ڈیفینڈ کر لو, بس چھوڑ دیجئے. میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی بہت ساری خطائیں ہو سکتی ہیں.
मैं कहता हूं कि आप लोग जब कहते थे कि शहबाज गिल जो है वो शहबाज गिल नहीं है, वो दुनिया न्यूज का कैमरामैन है, तो आप जवाब दीजिए। आप जब कहते थे कि जी अब तो ये हो गया जी वो हो गया, जिस तरह आप इदारों के खिलाफ बात करते हैं, आप ये समझ रखते हैं कि इस वक्त इदारे जो हैं अगर वो उन्होंने कोई लचक दिखाई हुई है, अगर वो मुल्क में मुफाहमत चाह रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली वो मुल्क की अच्छाई के लिए किरदार अदा करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं बेसिकली यही उनको हवा दे रहे हैं, यही उनको मजबूर करते हैं कि वो कोई ऐसा कदम करे। और इमरान खान का दुश्मन सबसे बड़ा उनके करीबी साथी और वो खुद हैं अपने दुश्मन। यही इस तरह के जो उन्होंने ये चमचागिरी के ये लोग रखे हुए हैं, यही सबसे बड़ा उनका बयानिए को खिलाफ करते हैं, क्योंकि जब उनको ये समझते हैं कि ये जितनी आवाम को वो जलसे में इकट्ठी कर लेते हैं, मैं 5 लोगों के नाम किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ लें, मैं बताने को तैयार हूं। मैं उन लोगों को जानता हूं जो हर जलसे में 200 से 300 लोग लेके जाते हैं, विद एविडेंस मैं देने के लिए तैयार हूं, जिसमें 2 तो मेरे पास मौजूद है, जिस वक्त मर्जी कोई चाहे तो देख ले, बाकी 3 के मुझे ढूंढने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये 4-5 एविडेंस मेरे पास हैं जो हर जलसे में जाते हैं, हर जलसे में 100-200 बंदा लाजमी लेके जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जितने भी जलसे हो रहे होते हैं, तो हर इलाके से अगर इसी तरह लोग लेके आते हैं तो जलसे तो बड़े होंगे, बट इट डजंट मेक सेंस कि ये किसी अदालत के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, ये किसी इदारे के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, ये किसी को खेलने की जो है वो पूरी अपनी तरफ से खुला मैदान छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो आप समझ रहे थे, जो आप समझना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो आप अपने इर्द गिर्द के रखे हुए इन चमचागिरों से तो सुन सकते हैं, लेकिन आप इन इदारों से अब उस तरह से नहीं सुन सकते जिस तरह से आप बन चुके थे। असल में हर एक का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर आप अपनी शोहरत और फेम को भी देख लें तो उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो आपकी इससे बड़ी गलतफहमी और क्या हो सकती है कि आपके खिलाफ होने वाले तमाम तर इस वक्त ऑडियो लीक सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया आपने। यानी कि अफसोस आपके ऊपर नहीं है, अफसोस आपके पैरोकारों के ऊपर है, जो आपकी बात को इतनी डिटाई के साथ मान रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे खान साहब ने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपने उनके माइंड में इतना मवाद भर दिया है, इतना कुछ भर दिया है कि उसको निकालने के लिए अब शायद कई बरस लगेंगे, और शायद उनको निकालने के लिए अब किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिशें करना होंगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई शायद नामुमकिन बात है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। डेफिनेटली मुमकिन तो है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो वालिदैन को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि जब उनके बच्चों की तरबियत इस तरह से हो चुकी है तो यकीनन उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और ये बात आप चाहे माने चाहे ना माने, तनकीद का और तारीफ का दोनों का इख्तियार आपके पास है, आप बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि हमने 2-3 दिन किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में लगाए और किस तरह की मालूमात में लगाए, और हम कहां कहां गए और हमने क्या इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इकट्ठी की ताकि हम आप लोगों को बता सकें। तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि आज जो है वो तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं वो हैशटैग भी चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं PM गेट चल रहा है, हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे लोग इस तवक्को में बैठे हुए हैं कि हमारे एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही बावकार इदारे के खिलाफ कुछ ट्वीट्स आने वाली हैं। बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, और इंतहाई अफसोस की बात कि ये जानते हुए या ये ना जानते हुए कि वो हैकर कौन है, वो क्या चीज़ें हैं, उसको मिठाइयाँ खिलाने की बातें करना, उसकी तारीफ़ें करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। लेकिन मैं आपको अभी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आप अपनी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरता हुआ देख लीजिए, या आप अपने ख्वाबों को चिकना चूर होता हुआ देख लीजिए, या फिर कल को आप जब एक नया हैशटैग बनाएंगे कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि दूर फिटे मुंह तेरा हैकर, तू सानू केड़े कम्मे लाता ते आप तू केड़े कम्मे लग गया। तो शायद ये वाला कुछ इस तरह का वो तारक मतीन साहब हैशटैग के लिए वो शायद लोगों को कहें कि कोई इस तरह का हैशटैग चलाओ, क्योंकि अब रहती नहीं है हमारी। तो भाई मेरे, मैं
अभी बता रहा हूं आपको, ये अगर गलत हुआ तो आई मस्ट से सॉरी एंड आई मस्ट से अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर इसके बरक्स कुछ हुआ। लेकिन ये अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है या जिसको हमने जितना जाना है, उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या था, ये क्या है, ये क्यों है, ये कहां से हो रहा है, इसको कौन कर रहा है, हमारी एजेंसियों को सारी इंफॉर्मेशन है और हमारी एजेंसियां जो हैं वो वहां तक पहुंच भी चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। ये हम चुके, इसको हम लोग इस वक्त तस्दीक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तवज्जो हटाने के लिए शायद उसी एक कैटेगरी में से एक काम हरकत की गई थी, किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। नो डाउट ऑडियो रिकॉर्ड्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि ऑडियो रिकॉर्ड्स नहीं हुई हैं, बट इससे ज्यादा इतना कुछ नहीं है। ऑडियो है जरूर और कुछ, बट ऐसी ऑडियोज नहीं आएंगी जो कि हमारे इदारों के खिलाफ हों। उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को खुश करने के लिए, उनकी ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ट्विटर्स के ऊपर अब देख लीजिए वो पहले कितने फॉलोअर्स थे, अब कितने हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं कब क्या आ जाए। तो ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। हमारे इदारे बहुत ही ज्यादा बावकार हैं और हमें उन पे फख्र है। वो तमाम लोग जो उनके खिलाफ बोलते हैं, अपने व्लॉग्स में अपने इख्तिताम के ऊपर भी कहते हैं कि अब अवाम नहीं मानेगी, अवाम फैसला कर चुकी है, अवाम नहीं चाहती, अवाम अब नहीं छोड़ेगी, अवाम अब ऐसा नहीं करेगी। शुक्र करें कि अब ये बात टक्कर से शुरू हुई थी, अब अवाम तक आ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जिस जिस तरह से उनकी आंखों से पर्दा हटेगा, अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। अगर हम गलत हैं तो अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, अगर वो गलत हैं तो अल्लाह उनकी रहनुमाई करे और अल्लाह ताला हर एक को सीधे रास्ते पर लगाए। लेकिन वो जिस रास्ते पर लगे हैं वो बहुत मुश्किल है, वो पैरोकारी का मामला लगता है, उसमें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि सब कुछ सामने आ जाता है। फिर भी वही बात है। अब आप देखें, आज मरियम नवाज ने कहा कि मैं जेल के अंदर थी और मेरी वीडियोस बनाई गई हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस अगर आप करते हैं ना, अगर आप लीक करना चाहें या करें, तो ये तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बात इस सेंस में कि आपकी सियासत भी खत्म हो जाएगी और ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल 100% कंफर्म कह रहा हूं कि अगर इन्होंने ऐसी हरकत की, इनका नामो निशान मिट जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी हल्का अहबाब, दुनिया का कोई भी, दुनिया की कोई तंजीम, कोई भी बाशऊर इंसान, कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि कैदो सोबंद में बंद किसी की गैर अखलाकी सोए हुए की, यानी कि उनकी सोई हुई की, आप उनकी स्लीपिंग सूट में उनकी वीडियो बना लें और वीडियो बनाकर उनको धमकाएं कि हम ये वीडियो लीक कर देंगे। मतलब इससे ज्यादा आपकी सोच और आपकी इस तरह की घटिया हरकत के ऊपर और क्या हो जाएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, इससे मरियम नवाज की फेम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला की जात उनको इस सेंस में इज्जत देगी क्योंकि उनका कसूर नहीं है। वो उस वक्त एक जकड़ी हुई थी, वो उन्होंने एक शिकंजे के अंदर गुजारी है। मुझे कोई एक ऐसी उस पार्टी की ऐसी वर्कर बता दे, मुझे कोई एक उस पार्टी की ऐसी जो उनकी जो मखसूस नशिस्तें समझ लें, या उनकी पार्टी में कोई अगर मुंतखब होकर आया है, किसी ने एक दिन भी इस तरह से 2-4 दिन अगर जेल में काटे हो, तो मरियम नवाज ने जितने दिन जेल में काटे, जिस तरह से पेशियों पे आना, जिस तरह सब्र तहम्मुल से आना जाना, अपनी वालिदा के उस मिशन को आगे बढ़ाया जो उनके बाप, उनके वालिद ने अपनी जब उनको कैदो सोबंद की ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ी, तो मिसिस जो उनकी नवाज हैं, कलसूम नवाज जो थी, उन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई। तो उसी तरह से मरियम नवाज ने अब अपने बाप का सहारा बनी। लाख इख्तलाफात है पॉलिटिक्स में, हमें उनकी पार्टी से भी बहुत इख्तलाफात हैं, दूध से धुले हुए नहीं हैं ये लोग, इनमें भी बहुत सारी करप्शंस की हुई हैं। अलग बात है साबित नहीं कर सके हैं, जब साबित नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको फिर कमजोरी किसकी कहा जा सकता है। 4 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद अगर इमरान खान साबित नहीं कर सके, 10 साल तक इक़्तिदार में रहने वाले मुशर्रफ साबित नहीं कर सके, तो फिर कौन साबित कर सकेगा। 10 और 4 14 साल बहुत होते हैं किसी
शख्स के लिए अगर उसने करप्शन की है तो फिर उसने इस बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से की कि आप पकड़ ही नहीं सके हैं, तो फिर अब उस बात को छोड़कर अब आगे बढ़िए। आपने जिस तरह से अपने जलसे जुलूसों में खड़े होकर आप कहते हैं कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, तो आपने थोड़े बहुत पैसे ले आते, लेकिन आपने किया क्या? देखें, ये उस तरह इतनी गुमराही की हदें पार कर चुकी हुई ये इस वक्त हमारे नौजवानों के जहनों के ऊपर इस वक्त इतनी गिरफ्त है कि